जी दोस्तों, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਹਰਸਿਮਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸਿਸ 'ਤੇ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਟੈਟ, ਪੀਐਸਟੈਟ, ਰੀਟ, ਈਟੀਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੀਟੈਟ ਪੇਪਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਕਿ 20 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਲਿਖਣ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰਸਾਈਡ ਬਾਏ ਟਰਬਲ ਇਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲੈਟਰਸ ਐਂਡ ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠਿਨਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। हाँ जी, ਜਿਹੜਾ दूसरा क्वेश्चन है प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਦ ਐਜੂਕੇਟਡ ਗਿਫਟਡ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਚ ਮੂਵਸ ਦੈਮ ਥਰੂ ਕਰੀਕੂਲਮ ਐਟ ਐਨ ਅਨਯੂਜੂਅਲੀ ਰੈਪਿਡ ਪੇਸ ਇਨ ਨੋਨ ਐਜ਼ differentiated instructions, enrichment, acceleration, imaginations। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵਰਨ ਗਤੀ ਵਰਧਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की गल की जा रही है, इंक्लूसिव क्लासरूम की। पाठ्य चर्चा में अनुकूलित करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं को अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। ये ना ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੋਟੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ पाठ्यचर्या में अनुकूलित करें सही है, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें सही है, अपने स्वयं को अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें ये भी बिल्कुल सही है। तो ਜਿਹੜਾ चौथा ऑप्शन है विविधता को एक बाधा के रूप में लें, विविधता को अपन ने बाधा के रूप में नहीं देखना है, उसको हमने एक साधन के रूप में देखना है। इसीलिए ये ऑप्शन है जो गलत हो गया। और 1 2 3 किस में सही है? 1 2 3 दूसरा ऑप्शन है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ऑप्शन है, ਇਸ ਲਈ दूजा आंसर है ਜਿਹੜਾ ਇਹ सही होगा। शैशव अवस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਅਤੇ ਮਾਧਿਅਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ। ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਵਾਈਗੋਸਕੀ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਵਾਈਗੋਸਕੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਿਆਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਕੋ ਸੁਗਮ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आत्म तौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना चाहिए।
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਕੋਲਬਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ 3 ਲੈਵਲ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 6 ਸਟੇਜਾਂ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਚੰਗਾ ਲੜਕਾ ਚੰਗੀ ਲੜਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੇਖਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਗਰਲ ਗੁੱਡ ਬੋਏ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ, ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਸਤਰ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन 7वां, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन 1, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण आर, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो दूसरा ऑप्शन है ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ सही आंसर होगा। ਆਪਾਂ अगले क्वेश्चन ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। अधिगम के लिए आंकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? अधिगम के लिए आंकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इस क्वेश्चन का जोड़ा सही आंसर है वो विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका प्रयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 है जोड़ा इसका सही आंसर हैगा। टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट दैट कैन बी यूज टू इंप्रूव देयर लर्निंग्स। ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਲਨ ਹੈ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। अगला क्वेश्चन है ਜਿਹੜਾ, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल है। तो इस क्वेश्चन है जोड़ा, इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ 3 ਸਾਲ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। अगला क्वेश्चन है, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰਲ ਗਿਲੀਗਨ ਸੀ ਉਹ ਕੋਹਲਬਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੀ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਹਲਬਰਗ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਨਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਸੀਗੇ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਫਰੋਮ ਆ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर है जोड़ा वो केंद्रीकरण होगा, सेंट्राइजेशन होगा। इसका सही आंसर है जोड़ा वो सेंट्राइजेशन है, क्योंकि ये विच बच्चा है जोड़ा वो एक ही प्रोस्पैक्टिव देख सकता है। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹ ਗਲਾਸ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੌੜਾਈ ਦੇਖੂਗਾ ਉਹ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਸੈਂਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, शुरुआती बाल्यावस्था की गल की जा रही है, 2 ਤੋਂ 7 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ
ਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਤਮ ਕੇਂद्रित, धीमी और तार्किक है। शुरुआती बाल अवस्था है ਜਿਹੜੀ उसकी गल की जा रही है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी होती है और सोच तार्किक होने लगती है। तो इसका सही आंसर है जिहड़ा ऑप्शन नंबर 2 होवेगा। अगले क्वेश्चन से चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज़ आ ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल वो होंदी है जिस दे विच साडी पूरी बॉडी का प्रयोग हुंदा है। तो इन्हां ऑप्शनां दे विच ऑप्शन नंबर 2 तैरना है जिहड़ा ये स्विमिंग, ये बिल्कुल सही आंसर है। ये ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है। इसलिए आप अगले क्वेश्चन से चलते हैं। भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। इसका सही आंसर, ਇਹਦਾ सही आंसर है ਜਿਹੜਾ इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ देखो ऑप्शन नंबर है ਜਿਹੜਾ 2 ਸਫੈਲੋਕੌਡਲ टॉप टू डाउन, यानी कि सिर तो लैके पैर वाल, सिर से पैर की और प्रॉक्सीमो डिस्टल इनर टू आउटलेयर, सेंटर तो पैरीफरी जाता है जिहड़ा ये ऑप्शन नंबर 2 है जिहड़ा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही आंसर है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जिहड़ा ऑप्शन नंबर 3 इंट्रापर्सनल ते स्पेशल। ये जिहड़ा इस क्वेश्चन का सही आंसर हैगा। आपां अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुभवनात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जिहड़ा वो ऑप्शन नंबर 3 है, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर है जिहड़ा वो ऑप्शन नंबर 4, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने पर के अवसर देना है। तो ये आंसर है जिहड़ा अपना बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण आर, सभी बच्चे तार्किक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में अक्षम्य होते हैं। तो इसका सही आंसर है जिहड़ा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो 2 नंबर ऑप्शन है जिहड़ा इसका सही आंसर हैगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कोर्स ऑफ लर्निंग। किहड़ी प्रक्रिया जिहड़ी ओह अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो इसका सही आंसर है जिहड़ा वो ऑप्शन नंबर 4 गैर प्रासंगिकरण प्रक्रिया जिहड़ी ये इसका सही आंसर होवेगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे आप चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है जिहड़ा ऑप्शन नंबर 4 होगा। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है? इस दे विच बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन करना पैना है। इसलिए आलोचनात्मक चिंतन के बारे ही उन्होंने पूछा है भी किस
ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ मिल रहा था वो ऑप्शन नंबर 4 ਦੇ ਵਿੱਚ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। आंतरिक ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ऑप्शन नंबर 2। मैं परीक्षा में फ़ेल हो गया क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਂਤਰਿਕ ਆਰੋਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ऑप्शन नंबर बी ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ਆਪਾਂ। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण आर, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जोड़ा सही आंसर है वो भी ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार डैश बच्चों के संकलनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस क्वेश्चन का जोड़ा सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, सहकर्मी सहयोग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन फिर लेव वाइगोस्की के रिलेटेड। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच की गल की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का जोड़ा सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रण करने का एक तरीका है, सैल्फ रेगूलेट करने का तरीका है। आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 25, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट के एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन प्याजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। तो बटन है जोड़ा जी वो निर्जीव होंदा है। तो जीन प्याजे के अनुसार इसनूं जोड़ा जीववादी चिंतन दे विच है जोड़ा वो काउंट किया जाता है। एनीमिज्म थिंकिंग दे विच है जोड़ा इसनूं काउंट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है जोड़ा ये सही होवेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संवलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का जोड़ा सही आंसर होवेगा इस क्वेश्चन का आंसर है जोड़ा ऑप्शन नंबर 3, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। इस क्वेश्चन का आंसर है जोड़ा तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा एक सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। कारण आर, जब विद्यार्थी विविध भेदभावों के बीच बातचीत में सम्मिलन होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जोड़ा सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जोड़ा सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। जोड़ा इस क्वेश्चन का वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डिवेलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इंग्लिश बोल सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है जोड़ा उसके वल वधदे हां।
बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। पहला उन्होंने सरल काम मिलता है तो बाद दे विच उन्होंने औखा काम इस दे अकॉर्डिंग है जिहड़ा वो बच्चे ने सीखते हैं। ऑप्शन अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी। सो ACGC टैट पेपर 1 जो कि 20 अगस्त 2023 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀਆਂ ਆਨਸਰ ਕੀਜ਼ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਹਰਸਿਮਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।